So after 2 you can see it is a VA ECMO which is put for the heart myocarditis. It has polymethyl pentene fiber hollow membrane and I request Dr. M.K. Garg. Intensicon 2024 hopes to be a significant gathering of medical professionals, researchers, academicians, aiming to exchange ideas, encourage sharing of knowledge, and nurture discussion on challenges and latest trends in critical care medicine. We intend to foster interactive sessions designed to enhance the skills and understanding of the participants. When any CME is organized, any conference is organized, we usually meet people, talk to our fellow colleagues about many things other than the academic. But still, these conferences and CMEs, they definitely sensitize many of us regarding what is happening, what is new. Critical care is a recent topic. When I was a postgraduate, I was a student of the heartwork behind this conference is Dr. Shamit and his team, of course, backed by Meenoji, the central team of Cygnus, IMA and everyone. But just imagine, the idea cropped up just 1.5 months back. And within this span of time, such a wonderful conference, I would call it a very nice conference, which has been organized. So first of all, 3 cheers to the team who has organized it. Well, critical care has always been a hallmark of Amritdhara Hospital, and we always tried to update it with the latest, with the newest studies, newest technologies, newest protocols, and we always tried to implement them in our patients as far as feasible. And this conference is a new step towards it, so that more and more new knowledge circulates among others, we get it, and because of the presence of so many stalwarts around us today, we have imbibed, we have imbibed and we are going to imbibe the rest of the day a lot of new knowledge which we will and they will use to treat their patients and of course finally to benefit them. So this is going to be a great academic treat. Hope this is a pleasant experience for all of you, and not only the scientific intent is good, but I hope you like the hospitality of Karnal and you like the gastronomic feast also. So stay tuned, there's lots to be coming up. Thank you so much. Thank you so much for being here today. Thanks Dr. Shamit for taking this wonderful initiative, Dr. Lal, and also the entire team. Really heartfelt thanks to IMA, Karnal to be part of this association for this wonderful initiative. Distinguished guests from the dais, thank you very much for being here and sharing your views. This subject of intensive care is a very relevant, very important, and more importantly, comprehensively aligned to our vision and the purpose for which we started our organization way back in 2011. The objective and the purpose was to set up critical care ICU for the tier 2, tier 3 and the rural India, particularly North India where 60% of the Indian population live. And we always thought and appropriate
that this part of the people, the community, need this kind of services. And it is with that objective in mind, we started creating hospitals with special focus on critical care and intensive care facilities. Intensive care is the heart of the entire healthcare delivery system. Right now, in Ujala Signals, we have 24 hospitals covering almost like 2,600 beds across UP, Haryana, Jammu Kashmir, most of them Uttarakhand as well. But most of the hospitals are multi-specialty hospitals, and we are trying to introduce high-end, particularly on the few areas of services which we have not done so far, which is basically on the oncology and the transplant side. But we are committed in the sense that we want to create high-end, high-quality healthcare services for the tier 2, tier 3 cities of North India. Talking about intensive care, I think I am not that confident enough to talk about in details. The doctors who are here, they have shared their views, and our doctors know how to create what you have to do. But I can only tell you that from the organizational standpoint, we are absolutely committed to create world-class ICU facilities in the country, in this part of the world. So whatever they feel and the doctors feel appropriate in terms of design of the ICU, whether it is closed door ICU, whether it is an open ICU, that's I leave it to the choice and the decision of the doctors who run the hospitals. But the fact remains, the important aspects of the critical care is the anesthetists and the ICU staff, particularly the nurses and the paramedical staffs. We have not done enough in terms of creating the capacity which is needed for these kind of services required in critical care facilities. So the commitment for the organization from our side is to create enough research opportunities, training opportunities, upliftment opportunities for the people that are working with us to get their knowledge enhanced to serve the patients in the ICUs. We have seen a lot of technology upgradation happening across the world. We have seen how the technology is getting changed in terms of new equipments, new ways of delivery of healthcare services, particularly in the ICU critical care areas. The few of them have been spoken about in the seminar itself. So far I have attended few of such sessions. I have seen one ECMO. Someone was talking about, I guess someone from Kailash Hospital was talking about ECMO. Dr. Vinay, she was talking about ECMO and I was highly impressed with the understanding that she has. And interestingly, people should know that we have started ECMO in Muradabad almost like 2 years back. She was talking about the affordability part, whether in ECMO really people can really undergo these facilities because of the cost implication, the price implication. She was talking about a number of 20 lakhs. And because of that, the people normally don't get the treatment which is required to be at the time of which is required to be applied. So obviously, from our standpoint, we can only say that when a patient has to be taken care of by us, when the patient lands up to a hospital, he or she, whatever treatment he needs to have, irrespective of financial outcome, though we are a private hospital, but we don't refuse any patients to undergo such treatment if we have those facilities. So the assurance part to all of you over here is that price cannot be a bottleneck or a deterrent for the services that we give to the community. So the point that Dr. Garg was talking about, we were chatting here, he was talking about how a government hospital and the private hospital should run, what are the economics, how the dynamics work in government hospital vis-a-vis private hospitals, vis-a-vis the corporate hospitals. So the point that I am trying to drive at is that we are the only corporate hospital, perhaps in tier 2, tier 3 cities. We provide
affordable, high quality healthcare services to the community, and nobody is refused for treatment for any reason, for any financial outcome. He or she lands up to our hospitals and needs the treatment to be done. But still, there is a price point that Dr. Garg talked about. How do you manage this? I can tell you, all of you who are here and listening to me, that we find out ways to take care of the patient. So, irrespective of the socio-economic class, whether he is a poor, whether he is a middle class, whether the patient is a rich, we don't care. What we care is about the treatment of the patient who has walked into the hospital. He is a human being, she is a human being, she had walked into the hospital for treatment, he deserves that treatment to be done, and we are there to take care of the patient. The important aspect of the layout of the ICUs today, a lot of hospitals I have seen personally, I have visited many of them, of course in tier 2 and tier 3. I am not comparing with the metros of the cities, the big hospitals, but certainly in tier 2, tier 3 cities. The layout of the ICUs, the way the management is done at the ICUs is not up to the mark for sure. But there are certain parameters one has to go through, certain clinical outcome results have to be tracked, whether it is infection control, whether it is respiratory control mechanism. There are so many instruments which are coming up, which are basically helping the doctors to provide critical care in the best possible manner. We also wanted to ensure that people at the remotest of the remote get access to the ICU facilities through digital mechanisms, by which we ensure that at least the people who land up to the emergency, they are land up to the emergency in less critical situation. So we are trying to create an opportunity for the community to serve people digitally. And so digital ICUs will be our next step going forward. So the assurance to all of you over here and to the community that we serve is that we are committed as an organization to create excellence in healthcare delivery system. As I had mentioned, ICU critical care is the heart of the hospital delivery mechanism and the systems that we follow. We are committed to provide excellence, whatever way it is. The capacity building is an important part, and we are trying to build through this research, through the clinic, through the training, upliftment, and recruiting new staffs who are more knowledgeable, who understand about the new ways of delivering healthcare services. With this commitment, I like to close my speech that I thought appropriate for the audience to know. In the next 3 to 5 years, you will see us going up to 50 hospitals in northern India, covering at least 5,000 to 6,000 beds. We are looking at providing almost like 400 to 500 super specialist doctors. This is what our vision is. And I am extremely happy to tell you that we have been really going ahead at the same kind of speed that we thought of going at the initial stage when we conceptualized our vision, our mission, and we are absolutely at par with that. We are very eager to tell you that we are just starting a comprehensive oncology setup in Haldwani, which will have radiation, medical dialysis and surgical facilities, and entire Kumail area of our Uttarakhand, there will be the only private hospital. We will have comprehensive oncology facilities, which will be from our side. We want to see this Amritdhara hospital to be showcased as the center of excellence for intensive care and critical care unit. We want to demonstrate to the big hospitals in metros that we at Amritdhara can build or can do. And आज ये जो हमने कॉन्फ्रेंस की है इंटेंसिकॉन 2024, ये अमृतधारा माई हॉस्पिटल उजाला सिग्नस ग्रुप IMA करनाल के सौजन्य से किया है। कॉन्फ्रेंस का जो बेसिक हमारा आइडिया था कि जो नई चीज़ें
जो नई चीज़ें क्रिटिकल केयर में आ रही हैं, आईसीयू में आ रही हैं, वो सब हम अपने इलाके करनाल और आसपास के एरिया में जितने भी डॉक्टर हैं उन सबको यहाँ पर बुलाएं, उनसे हम डिस्कस करें कि क्या क्या नया चल रहा है, वो क्या प्रैक्टिस कर रहे हैं, क्या ट्रेंड्स हैं पूरे दुनिया में, उसको हम एक मंच पर लेके आए हैं। पूरे दिन का ये प्रोग्राम है 9 बजे से 7:30 तक, जिसमें हरियाणा के अलग अलग हिस्सों से, चंडीगढ़ से और दिल्ली से काफ़ी सीनियर डॉक्टर्स आए हैं। उन्होंने अपना एक्सपीरियंस और चीज़ें सब लोगों के साथ साझा किए। काफ़ी डॉक्टर्स को कुछ क्वेश्चंस थे, कुछ भी दिक्कतें थी, उनका उन्होंने समाधान बताया, उनका उन्होंने आंसर दिया। इस प्लेटफॉर्म से जो फ़ायदा हमें मिलता है वो ये है कि जो हम अपने पेशेंट्स का उपचार कर रहे हैं वो आज जो भी दुनिया में बेस्ट चल रहा है उस हिसाब से कर पाएंगे। वही चीज़ हम करनाल में कर रहे हैं और इस प्लेटफॉर्म से हम आगे भी करना चाहते हैं। सर, मोटो जो है टायर 2, टायर 3 सिटीज़ तक पहुंचना है कि बेस्ट जो टेक्नोलॉजी है वो पहुंचे। अभी अगर हम देखते हैं मोस्टली हेल्थ केयर जो भी है दिल्ली, चंडीगढ़, हर कोई लगता है बीमार हुआ तो वहाँ जाना है, लेकिन सर माइक बंद करो, आवाज़ खत्म हो। पिछले कुछ सालों में हमने काफ़ी हद तक वो जो एक फासला था उसको पार कर लिया है। आज कोई भी दिक्कत होती है, चाहे वो ऑन्कोलॉजी की दिक्कत है, कार्डियोलॉजी की दिक्कत है, बाईपास सर्जरी है, नेफ्रोलॉजी है, कुछ भी है, उसका इलाज अपने ही शहर में टियर 2, टियर 3 सिटी में पॉसिबल है। कोई भी पेशेंट है उसको ऐसा नहीं है कि उसको दिक्कत हुई वो दिल्ली में जाके इलाज करा रहा है, उसके साथ एक पूरा परिवार जुड़ा हुआ है, 4 परिवार और जुड़े हुए हैं। जब भी वो वहाँ जाते हैं सबका एक घर उजड़ के वहाँ पर जाता है, ठीक है, और ख़र्चा जो होता है वो टियर 2, टियर 3 से लगभग 3 से 4 गुना ज़्यादा होता है। तो हमारी कोशिश यही है कि जो सुविधाएं आप दिल्ली, चंडीगढ़ या किसी भी अच्छे बड़े हॉस्पिटल में मिल रही हैं, सेम सारी चीज़ें हम यहीं पर मुहैया करा पाएँ और कम से कम खर्चे में जो वर्ल्ड क्लास ट्रीटमेंट है वो यहाँ दे पाएँ। जितने भी हॉस्पिटल है मैक्सिमम जो पुरानी पद्धति के अनुसार वो कार्य करते हैं, मशीनरी को लेकर के, टेक्नोलॉजी को लेकर के, या डॉक्टरों की जो नई पद्धति आई है उसको लेकर के करते हैं। उसके बाद फिर उनको रेफर भी किया जाता है। तो उस बारे में क्या कुछ कहना है? सर, जैसे बहुत सारे हॉस्पिटल्स हैं बहुत अच्छा काम कर रहे हैं आजकल टियर 2, टियर 3 में। जिस चीज़ की हमें ज़रूरत है वो है कि मरीज़ का भरोसा, मरीज़ का कॉन्फिडेंस कि जो इलाज हो रहा है वो बेस्ट इलाज हो रहा है। बहुत बार ये होगा कि बहुत अच्छा इलाज हो रहा है, मरीज़ कहता है नहीं मुझे एम्स जाना है, मेदांता जाना है, किसी और हॉस्पिटल में जाना है। इलाज वहाँ भी अच्छा होगा, यहाँ भी अच्छा चल रहा था, लेकिन वो एक जो 5%, 10% अभी भी लोगों में ये है कि दिल्ली, चंडीगढ़ जाकर ही अच्छा इलाज होगा, वो एक भरोसा उनके अंदर हमें पैदा करना है। डॉक्टर साहब, जिस तरह भरोसा टूटता जा रहा है, पहले एक प्रगाढ़ भरोसा था मरीज और डॉक्टर के बीच में, जो आज इस तरह डॉक्टर्स पे हमले बढ़े, डॉक्टर्स पर भरोसा डगमगाया मरीज का, तो उसका क्या किसी भी साथी पे ऐसा होता है, और सिर्फ हेल्थ केयर के साथ ही नहीं, अगर कोई भी फेटर्निटी है उसके किसी साथी पर कोई भी अगर ऐसा प्रहार होता है वो अच्छा नहीं है। रहा भरोसे का सवाल, अगर हम लोग बेस्ट केयर देंगे, अपना बेस्ट देंगे तो भरोसा भी रहेगा। ओनको में, कार्डियो में, न्यूरो में एडवांस रिसर्च को लेकर IIM में क्या कुछ एडवांस कर रहा है सर? क्या प्रेजेंटेशन हुई है उसमें? IIM हर महीने इस बारे में जो भी कोई नई अपडेट आती है उसको लेके कार्यक्रम करता है, चाहे दिल्ली हो, चंडीगढ़ हो, करनाल हो, जितने भी यहाँ के टॉप डॉक्टर्स होते हैं उसको मंच पे लाते हैं ताकि जो लोग अनभिज्ञ हैं कि क्या क्या एडवांसमेंट हैं वो उससे उनको परिचित करा सकें। जो गरीब तबका है, जो कहीं वीकर लोग हैं, जो नॉर्मली डरते हैं कि बड़े हॉस्पिटल में हमारा कुछ नहीं हो सकता, गवर्नमेंट में पता क्या हो रहा है, उनके लिए क्या है? सर, आजकल उनके लिए बहुत सुविधा हो गई है। सरकार की तरफ से काफ़ी स्कीम्स हैं और काफ़ी लोगों के पास हेल्थ केयर भी है, तो किसी भी अगर गरीब व्यक्ति को इलाज चाहिए होता है तो सरकार उसका पूरा खर्चा उठाती है, हॉस्पिटल में एडमिट होता है और बिना किसी उसको खर्चे के बेस्ट इलाज प्रोवाइड कराया जाता है। अमृतधारा की ही बात कर रहा हूँ। सपोज़ एक पेशेंट आयुष्मान में आता है, चाहे उसकी स्टेंटिंग होनी है, हार्ट की स्टेंटिंग होनी है या कोई भी ऑपरेशन होना है,
वो फ्री होता है सर। तो हमें आपके माध्यम से ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को पता लगे ऐसी स्कीम्स हैं और उनको वो अवेल करें। कनेक्शन की बात है, लोग डरते हैं, यहाँ तो आ ही नहीं पाते, कोई बड़ा हॉस्पिटल है तो। और सर थोड़ा आप फिर उनको लिखिएगा, बताइएगा तो बेटर हो जाएगा। सर हॉस्पिटल का डॉक्टरों का एक संगठन बनाया हुआ है और गांव के अंदर तकरीबन आपने देखा कि झोला छाप डॉक्टर है जो कि मरीजों के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। ऐसे बहुत सारी प्रॉब्लम्स सामने भी आ चुकी है, तो उसके ऊपर संगठन क्या काम कर रहे हैं? सर मतलब जो झोला छाप डॉक्टर जिनको हम कह रहे हैं वो हमारा एक अनभिज्ञ अंग है हमारी हेल्थ केयर सिस्टम का। उनको हम दरकिनार नहीं कर सकते। किसी को खांसी हुई, जुकाम हुआ, उनने इलाज के लिए वहाँ गए, आपके पड़ोस में हैं, इजीली उन्होंने आपका इलाज कर दिया, 2-4 गोलियाँ दी, ठीक हो गए। आपको शहर में अगर गांव से कोई उठ के आ रहा है, ज़्यादा इलाज की ज़रूरत है, खांसी बुखार वो सब आपका वहीं पर ठीक कर रहे हैं, नहीं तो आपको उसके लिए भी उठ के शहर में आना पड़ेगा। तो मेरा मानना है कि वो अपना काम कर रहे हैं। और तो IEMA सर कोशिश क्यों नहीं करता कि उनको कहीं ना कहीं रजिस्टर्ड जैसे कर लिया जाए? सरकार की तरफ से इसमें एक ब्रिज कोर्स होते हैं, ठीक है ना, जो गवर्नमेंट ने चलाए हुए हैं। अगर वो ब्रिज कोर्स करते हैं 6 महीने साल भर का, तो वो एक मेन स्ट्रीम डॉक्टर्स एलोपैथी के साथ भी जुड़ के काम कर सकते हैं। आज क्या मैसेज कन्वे करेंगे सर जनरल पब्लिक के लिए? स्टे हेल्दी, वर्कआउट, and if there any need, any problem, any kind of a symptom you get, please visit a hospital even for a routine checkup. डॉक्टर बहुत आपकी क्या भविष्य की योजना है, फ्यूचर प्लानिंग? I think message as you said, the message from this conference is, देखिए ऐसा है कि अल्टीमेटली क्रिटिकल केयर का जो इम्पोर्टेंस है, ये इम्पोर्टेंस Tier 2 Tier 3 रूरल इंडिया में इतना नहीं था। और हम लोग कोशिश करा कि किस तरीके से क्रिटिकल केयर का सबसे अच्छा फैसिलिटी दिया जाए। तो लोग कोई भी बीमार हो, जो बीमार वेरी क्रिटिकल होता है, उसका अल्टीमेटली गोल्डन आवर का बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होता है कि उस 1 घंटा 2 घंटा में उसका क्या किया जाए, इलाज कैसे हो सकता है। उसका ज़रूरी है कि इमरजेंसी सिस्टम कैसे रहे और इंटेंसिविस्ट किस तरीके से है, हमारा ICU फैसिलिटी कैसे है, जो इक्विपमेंट्स का ज़रूरी होता है सर्वाइवल के लिए और उसका मैनेज करने के लिए हमारा पास है कि नहीं है, और डॉक्टर क्वालिफाइड है कि नहीं है। सो ये सब चीज़ पूरा जो सिस्टम है वो हम लोग अमृतधारा हॉस्पिटल में टॉप क्लास इक्विपमेंट्स, डॉक्टर्स, फैसिलिटीज़, एवरीथिंग रखा हुआ है। तो जो मैसेज यही है कम्युनिटी को कि कोई भी इलाज आपको कराना है, आपको लगता है कि आपका तकलीफ है, हार्ट का प्रॉब्लम हो गया, हमारा पास बेस्ट जो कार्डियोलॉजिस्ट है इधर बैठा हुआ है। जो कोई न्यूरो का प्रॉब्लम हो गया, कोई ट्रॉमा का इशू आ गया, कोई रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम हो गया, कोई कम्युनिटी रिलेटेड कुछ इन्फेक्शन हो गया, न्यूमोनिया हो गया, कोई भी हुआ जो क्रिटिकल हो जाता है पेशेंट, उसका फर्स्ट पॉइंट ऑफ टच होना चाहिए अमृतधारा। उसके बाद उसको स्टेबलाइज करना रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारा है। इसलिए हम लोग डॉक्टर एक साथ काम करते हैं। तो ICU का बड़ा चीज़ क्या होता है कि ऑल डॉक्टर्स एक मिल के काम करता है। जो सुपर स्पेशलिस्ट होता है, एक कार्डियोलॉजिस्ट होगा, न्यूरोसर्जन होगा, अलग अलग डॉक्टर्स होता है, अलग अलग सुपर स्पेशलिटीज़ होता है, लेकिन एक मिल के जो काम करता है, जो पेशेंट को देखना होता है, उसका आउटकम बेस्ट होता है, तभी सब एक डॉक्टर मिल के 1 टीम करके काम करते हैं। उसको जोड़ने का काम होता है इंटेंसिविस्ट का और बेस्ट ICU स्पेशलिस्ट का। तो डॉक्टर समीत जो बता रहे थे कि हम लोग ये भरोसा देता है कम्युनिटी को कि भाई आपको जो भी हुआ, आपका कोई मेट्रो सिटी ये सब जगह जाने का कोई ज़रूरत नहीं है। आपका इलाका में सब कुछ है, आपको बिलीव करना है, आपको ट्रस्ट करना है, और हम जिस तरीके से ट्रीटमेंट करते हैं। आप अफोर्डेबिलिटी का बात कर रहे थे, आप बोल रहे थे कि इस तरीके से हम लोग मेजर खर्चा हो जाता है, लोग कैसे ट्रीटमेंट करें। देखिए हम लोग को कोई पहले ही हम बताया था कि हम लोग कभी ये सोचता नहीं है कि इसको पास पैसा है नहीं है। पेशेंट को देखभाल करना है, पेशेंट आ गया हॉस्पिटल में, उसको बचाना है, उसको ठीक करना है, ये हमारा रिस्पॉन्सिबिलिटी है। गवर्नमेंट स्कीम आ रहा है, आयुष्मान भारत का स्कीम बताया है, इंश्योरेंस आ रहा है, सब कुछ आ रहा है, वो तो है ही है। हम लोग यही करता है कि लोग को जानकर देना पड़ता है। तो हम लोग गाँव के जाके बोलते हैं कि भैया आयुष्मान भारत के साथ जोड़ो। गवर्नमेंट की इतना बड़ा प्रोग्राम है, इतना अच्छा प्रोग्राम है। अभी आपको पता होगा कि 70 ईयर्स एज के ऊपर भी आयुष्मान भारत को लागू हुआ है। तो ये जो फैसिलिटीज़ गवर्नमेंट दे रहा है, प्लस प्राइवेट इंश्योरेंस कंपनीज आ रहा है, उसके साथ जोड़ो
और हमारा का पास आगे हम लोग तो अफोर्डेबल हेल्थ केयर फैसिलिटी देता है। हम लोग ऐसा कोई चार्ज नहीं करता है जो बड़ा बड़ा, मैं नाम नहीं लेना चाहता हूँ, बड़ा बड़ा हॉस्पिटल चार्ज करते हैं। और भी यही बात है कि उसको पता नहीं चलता है कि वो पेशेंट का हो क्या रहा है, उसका फिनेंशियल आउटकम क्या होगा, कितना खर्चा लगेगा, कुछ पता नहीं होता है। उसके बाद आउटकम क्या होगा वो भी पता नहीं है। लेकिन हम लोग क्या करता है, हम लोग कोई पेशेंट आ जाता है उसको समझाता है, उसको फैमिली को समझा दिया जाता है कि भैया आपका इतना खर्चा होगा ये इलाज के लिए, और ये इलाज के लिए आप ये ट्रीटमेंट करेंगे, और हमको बोलते रहेंगे, फैमिली को बात करते रहेंगे, फ्रेंड्स के साथ बात करते रहेंगे, देखिए पेशेंट ऐसा है ऐसा है ऐसा है। कोई भी दिक्कत आ जाता है हम लोग पहले बताते हैं कि भैया पेशेंट को दिक्कत आ रहा है यही कारण के ऊपर, आपका क्या लगता है, आप फैमिली को बालो, फैमिली को जोड़ो। तो हमारा जो कॉन्सेप्ट है, ये कॉन्सेप्ट है केयर। हम लोग कोई पेशेंट आता है, हम लोग सोच लेते हैं कि ये हमारा घर जैसे आ गया। एक देखिए कोई ह्यूमन बीइंग कोई इलाज चाहता है तो वो तो हॉस्पिटल जाता है, उसको एक फियर होता है कि हॉस्पिटल चला जाऊंगा मैं, इसे कैसे देखे जाएगा, किस तरीके से हमको दिखाएगा, कैसे कोई ना कोई सर्जरी कर देगा, पता नहीं चलेगा क्या हो गया। ये जो भरोसा, ये भरोसा हम दिलाते हैं। ये भरोसा दिलाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ट्रस्ट अल्टीमेटली सेंट्रल पॉइंट जो भी पेशेंट जो हॉस्पिटल में साथ जोड़ता है। तो हम इस तरीके से, हम इस फिलोसॉफी के साथ काम करता है कि लोगों को भरोसा दिलाना, लोगों के साथ बात करना, लोगों को फैमिली को बात आना, सबको साथ प्रॉपरली ट्रीटमेंट करना। तो ये हमारा फिलोसॉफी है। इसके ऊपर भी हम लोग हॉस्पिटल बढ़ा रहे हैं, और हम लोग इस कम्युनिकेशन आपके थ्रू माध्यम में करना चाहते हैं कि आप बताइए सब लोग कि कोई शहर में जाने ज़रूरत नहीं है, करनाल में अमृतधारा है, इधर में सब कुछ है, आपका इलाज 100% ठीक होगा। तो यही मैसेज आज के जो सेमिनार है ये मैसेज देना चाहता हूँ। आपकी फ्यूचर प्लानिंग क्या एक्सपेंशन की है? फ्यूचर प्लानिंग इधर में देखिए अमृतधारा में तो आप देख ही रहे, और भी कुछ बड़ा बड़ा करेंगे, ट्रांसप्लांट करेंगे, ऑन्कोलॉजी करेंगे, जो हमारा पास अभी नहीं है। इसके बाद हम लोग नॉर्थ इंडिया में आपको बताया था कि हम लोग 50 हॉस्पिटल्स बढ़ाएंगे, अभी 24 हॉस्पिटल्स हैं, और हम लोग कॉम्प्रिहेंसिव केयर जैसे बोलता है सब कुछ करेंगे जो बड़ा बड़ा हॉस्पिटल में होता है। आज हम लोग रिसर्च ऊपर काम कर रहा है, हमको ट्रेनिंग के ऊपर काम कर रहा है, हमको नर्सिंग स्टेट जैसे क्रिटिकल केयर में आप बता रहे थे कि नर्सिंग स्टाफ बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है जो मिलता नहीं है। जो क्रिटिकल केयर का जो असली चीज़ होता है इंटेंसिविस्ट और क्रिटिकल केयर नर्सिंग स्टाफ, ये बहुत ज़रूरी होता है। इसके किस तरीके से हम लोग जोड़े साथ साथ में उसको ट्रेनिंग दिया जाए, गांव-गांव से उठा के लेके आता है, अब नर्सिंग कॉलेज करना चाहता है, ये सब चीज़ के ऊपर बहुत ध्यान दे रहे हैं। हॉस्पिटलों के अंदर डॉक्टर से सर्जरी ना करा करके जो असिस्टेंट है या सहायक है उनसे इलाज करवाते हैं, जिससे बड़ा समस्या खड़ी हो जाती है। देखिए कोई भी सिचुएशन ऐसा हो कि जो सर्जन है वो सर्जन काम का सर्जन ही करेगा, लेकिन सर्जन सोचता है कि उसके साथ जूनियर जो है वो काम वो कर लेगा, तभी वो कराता है, अदरवाइज़ नहीं कराता है। बट ये आप सोच लीजिएगा, कोई भी ऐसा कुछ सिचुएशन है, हमारा जो सिस्टम है वो सिस्टम उसको टेक केयर करेंगे। कोई पेशेंट नेग्लेक्टेड कभी नहीं होगा, और पेशेंट को ऐसा कुछ नहीं फील होगा कि नहीं मैंने जो सर्जन सर्जरी करना था उसको ना करा के दूसरा किसी से करा दिया, ऐसा कभी नहीं होता है। एक आध केस सपोज हुआ भी होगा, लेकिन वो कॉम्पिटेंट सर्जन होगा तभी कराता है। तो ये भरोसा होना चाहिए कि नहीं इस एक्स नहीं हुआ है तो वाई हो रहा है, लेकिन वाई जो है वो कॉम्पिटेंट ही है, और सर्जरी करने का उसका कॉम्पिटेंसी है तभी कर रहा है, नहीं तो हम लोग अलाउ नहीं करते कभी करने के लिए।